Hello, hello friends. Welcome to my YouTube channel, Understanding Communication. This video is very much different from my previous videos. In my previous video, it was also very different, but it was very important also somewhere because my videos will be very much practical and I will be talking about practical things about communication, which I don't think so many of trainers are not talking. We all are focusing on the big things, the big canvas, but we somewhere ignore the small portions, which is actually acting like a bridge, you can say, in communication. So, welcome to my YouTube channel. Today's video is completely dedicated to importance of parts of speech. I am very much aware about this fact that you all must have read about parts of speech in your school days. You all must have gone through the definitions also and set of examples also. But somewhere you all must have muggified these sentences, muggified the definitions, and if I ask now about the parts of speech, many of you will go blank. This happens because we have studied them in our school days, a long time back. पर आज हम इनको रटेंगे नहीं, जैसा कि मेरे पहले भी वीडियोस में मैं इस चीज़ को एम्फसाइज करता हूँ. मैं रटवाता नहीं हूँ, मैं समझाता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझाता हूँ एंड आई ट्राई टू कनेक्ट यू ऑल विद द बेसिक थिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये वीडियो में भी, इस वीडियो में भी मैं आपको एक रूट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा एंड दैट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन. सो वी ऑफनली टॉक अबाउट big things, as I said, but ignore the basics. Let us understand noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection in my way. तो आप सब लोग यहाँ पे एक देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है बीच में, यहाँ पर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है बीच में और यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव है. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन में. अब इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है. इफ आई टॉक अबाउट नाउन, we all know that this is a name of a person, place or thing. but ये communication में कहाँ पे important है, क्यों ये important है, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा. See, I'll talk here, I'll give a very small example. If you go to a shop, this is you and this is a shop and you need a pencil, okay, maybe Natraj, and this is the shopkeeper, okay, and this is you. You went to shop and you asked that shopkeeper give me a pencil. सिर्फ आपने जब बोला कि मेरे को एक पेंसिल दे दो, that shopkeeper went to the rack of pencils, okay, and he took one pencil and gave you. but अगर आपको एक स्पेसिफिक पेंसिल चाहिए तो कैसे बोलोगे, आप एक नाम लोगे. so there you are taking name and name is about noun. so how noun is important, because it is giving a direction to your sentence. आप एक नाम लेते हो तो कहीं ना कहीं नाउन आपका वो नाउन हो गया, नाम वो आपका नाउन हो गया एंड like this it gives a direction to your sentence that what you want, a pencil. which pencil? Natraj.
इसी तरह से अगर आपको पेन चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप अगर कोई नाम लेते हो तो वो आपका एक तरह से डायरेक्शन देता है सेंटेंस को. सो नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, इट इज लाइक अ किंग और क्वीन विच इज गिविंग द डायरेक्शन टू दैट सेंटेंस. अब हम समझते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को. द नेक्स्ट वन कम्स योर प्रोनाउन. हम इसको एक साथ रीड करते हैं और डेफिनेशन तो सबको मालूम ही होगा, बट यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ. एंड दिस इज बेसिकली वन मोर नाउन, बट द सेकेंड नाउन जस्ट लाइक योर प्रॉपर नेम एंड निक नेम. आपका एक प्रॉपर नेम होता है और एक आपका निक नेम होता है. ठीक उसी तरह से नाउन एक प्रॉपर नेम की तरह हो गया, विच इज़ अ नेम ऑफ अ ब्रांड. यस, एंड ये आपका निक नेम की तरह हो गया प्रो. यानी कि उस प्रॉपर नेम के जगह पे हम अगर किसी चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं सेंटेंसेस में, दैट इज एक्चुअली योर प्रोनाउन. एंड वाई वी आर यूजिंग वाई प्रोनाउन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ वी वांट टू repeat something, repeat about the brand, repeat about that particular thing again and again, or you can say I want to talk or I want to speak about that brand or about that person again and again, then I will start using this pronoun. Basically there are three pronoun: he, she and it. आगे चलकर ये और भी प्रोनाउंस, यानी कि यही प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे. ओके, सो दिस इज द use and this is the importance of pronoun in our sentences when I have to talk more and more and more and more about someone. Okay, now let us jump to the third parts of speech. Now before I start telling about this very interesting example, I will give a very interesting example of this. Advertisement. You all must have seen advertisement, or you all must have seen, you must be seeing the advertisements every day almost. What are these advertisements basically? If I talk about advertisement, what are these? They are promoting any brand. That means it is talking. If I say it is talking about what? Noun or pronoun. So adjective is nothing else, but when I want to talk something about noun or pronoun, that means it is good, bad, very good, or very bad. These all are your pronoun, adjectives, sorry. Actually, we are talking about that noun or pronoun. Now, one more thing is there about adjective. It oftenly comes the position of adjectives. Now, this will be important for those students who will be appearing for the competitive examinations. So, position of adjectives. It is mostly after noun or pronoun, or many times before noun or pronoun. For example, pen is good. Or now, if I want to take this adjective before noun and pronoun, I have to talk about something extra. That means this. Now this is specifying noun or pronoun. This pen is good. So like this, your adjectives are
important in our communication when we have to give some importance to any person, or sometimes I have to publicize, यानी कि मुझे जब किसी चीज़ के बारे में प्रमोट करना है, प्रमोशन करना है। मान लो आपने एक पेन खरीदा और आप अपने दोस्त को भी बोलना चाह रहे हो कि यही पेन लो, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड पेन, इट इज़ द सॉफ्टनेस इज़ देयर, द स्मूथनेस इज़ देयर। और मान लो आपने कोई मोबाइल खरीदा और आप भी चाह रहे हो कि आपका भी दोस्त वही मोबाइल खरीदे, तो वहाँ पे भी आप एडजेक्टिव्स को ही यूज़ करोगे। इसके अलावा एक और चीज़ है एडजेक्टिव्स की खासियत, हमारे 90% 80 to 90% कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। और कई बार तो आपके जो ये एडजेक्टिव्स हैं, मैनी टाइम्स दीज एडजेक्टिव्स आर फ्रॉम द नाउन। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। योर नाउन इज, इफ योर नाउन इज चाइल्ड, adjective becomes childish. You are adding ish, you are adding ish, and it becomes your adjective. Okay, I think so till now it is very helpful. समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कम्युनिकेशन में। तो कहीं ना कहीं ये छोटे 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 प्यादे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिनको अभी तक शायद हम लोग इग्नोर करते आ रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड दैट इज योर वर्ब। नाउ दिस वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वर्ब इज again used in our tenses somewhere when we talk about tenses, when we talk about time. Now this verb is very important later on when we talk about tenses, yes, when we talk about time, when we talk about action. When all these three comes, this verb is very important. और verb होता क्या है वैसे? verb होता है simply एक action word. ये एक action word है और ये उस सेंटेंस में जब भी हमें किसी एक्शन के बारे में बोलना होता है, whenever I have to speak about any action, we start taking the help of verb. For example, I play. This is a very small example. I play football. अब इसमें अगर मैं इस play को हटा देता हूँ, I football, इसका कुछ मायने ही नहीं निकलेगा, मीनिंग ही नहीं निकलेगा, क्योंकि सेंटेंस इज समथिंग अबाउट सेंस। सो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, इट इज मेकिंग दैट सेंटेंस मीनिंगफुल। तो हर कंस्ट्रक्शन में ये छोटे छोटे पार्ट आप देख ही रहे होंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से ये हमारे कन्वर्जेशन को, हमारे कम्युनिकेशन को एक डायरेक्शन दे रहा है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, that is your adverb. अब मैंने एक लाइन यहां पर भी खींच दिया, जैसे मैंने एडजेक्टिव को एक एडवर्टाइजमेंट कहा, एडवर्टाइजमेंट इन द सेंस फॉर योर नाउन एंड प्रोनाउन, ये भी कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट है, ये भी कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट है, बट ये एडवर्टाइजमेंट होता है आपका वर्ब का। यस, इट इज़ द एडवर्टाइजमेंट फॉर द वर्ब, जहाँ पे मुझे वर्ब्स के बारे में कुछ कहना है, कुछ स्पेसिफाई करना है, कुछ क्लैरिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई प्ले फुटबॉल, now here it is verb. Okay, now this play is your verb. इस verb को और मुझे अगर क्लैरिफाई करना है या डिफाइन करना है फर्दर, तो मुझे एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले स्मार्टली. Now this smartly is your
adverb, and this is clarifying or defining my playing, that is my action. Somewhere it is further defining, further clarifying my action. So like this we take the help of adverb for further defining. हम adverb को यूज में तब लाते हैं जब मुझे अपने एक्शन को फर्दर डिफाइन करना होता है. इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जहां पे मुझे एडवर्ब की जरूरत पड़ती है. बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट मोस्टली वी डोंट नीड एडवर्ब. एडवर्ब हमें तभी जरूरत पड़ता है जब मुझे एक्शन को डिफाइन करना पड़ता है. अब यहाँ पे जब मैं डिफाइन की बात करता हूँ एक्शन को, तो वहाँ पे पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है. एडवर्ब का पोजीशन कई बार वर्ब के बाद आता है, लेकिन एडजेक्टिव का पोजीशन आपका नाउन प्रोनाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन प्रोनाउन के बाद में भी जा सकता है, कहीं भी वो शिफ्ट हो सकता है. और जब मैं एडवर्ब की बात करता हूं तो एडवर्ब बेसिकली आपका एडजेक्टिव से उठकर आता है. यस, जितने भी आपके एडजेक्टिव है, फॉर एग्जांपल if I talk about childish, now this is coming from your child, which is your noun or pronoun. तो रूट मेरा कहीं ना कहीं नाउन प्रोनाउन भी होता है एडजेक्टिव का, और यही चाइल्डिश आपका एडजेक्टिव है. और जब मैं इसमें चाइल्ड ISH तो मैं लगाऊंगा ही, क्योंकि एडजेक्टिव है कहीं ना कहीं, और इसके बाद LY लगा दिया तो वो आपका बन गया एडवर्ब. तो बहुत सारे केसेस में हम जब LY ऐड करने लगते हैं उस एडजेक्टिव में, वो एडवर्ब बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और एग्जाम्पल्स दे रहा हूं आपको. अब ये कई बार डायरेक्ट आपके नाउन और प्रोनाउन में भी आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट पोलाइट, now this polite is what is this polite? This is your, yes, this is your abstract noun. This is not your adjective, this is your abstract noun. If I say politeness, this becomes your what? Your adverb. Why it is your adverb? Because I will take this politeness word after a word. He talks with politeness. अब यहाँ पे एक और चीज उठकर आया, एंड वो क्या है? हमेशा हम LY नहीं लगाते. दिस इज द ट्रिक. बिकॉज आप सबको शायद कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि मोस्टली वी ऐड LY टू मेक एडवर्ब, बट बहुत बार हमें LY लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये उनमें से एक एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही मेक्स गुड टी. नाउ जस्ट ट्राई टू गेस what it is. Adjective or adverb? Yes? Oh, no. It is actually your adverb. Why? Because it is defining makes. अब यहाँ पे adjective कैसे हो सकता है? इसी good को मैं adjective बना दूंगा. He is a good tea maker. Now यही आपका जो एडवर्ब था वो आपका एडजेक्टिव हो गया. वो कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे मैंने वर्ब को हटा दिया. तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जहाँ पर भी मैंने वर्ब को यूज़ नहीं किया, जिस भी सेंटेंसेस में, इन एनी सेंटेंस व्हेन आई एम नॉट यूजिंग द वर्ब, देन इट बिकम्स एडजेक्टिव समवेयर. ओके, तो अभी तक तो बहुत सारा कुछ क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में कि बेसिकली एडजेक्टिव्स क्या है और एडवर्ब्स क्या है. इसको मैंने इतना डिटेल्स में इसलिए और समझाया, बहुत से
स्टूडेंट्स हैं जो कई बार एडजेक्टिव्स और एडवर्ब में कंफ्यूज कर जाते हैं और उनका पोजीशन में भी कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं. सो दैट इज व्हाई आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स कि बेसिकली एडजेक्टिव्स आपके क्या हैं और आपके एडवर्ब्स क्या है. ओके, नाउ लेट अस go to the next parts of speech, that is your preposition. Now if I write preposition and draw a line between this pre and position, इसको अगर हम भूल जाए तो निकलता है position, that means स्थान, that means we are talking about place. Now what can be the place, the importance of place in our communication? Good question. तो जब भी मुझे नाउन और प्रोनाउन के प्लेस के बारे में मुझे कुछ बताना हो, यानी कि मैं कहाँ पर हूँ, आप कहाँ पर हो, ये पेन कहाँ पे है, ये मार्कर कहाँ है, ये वाइट बोर्ड कहाँ पर है, ठीक है, ये मोबाइल कहाँ पे है, तो ये सारे चीज़ों को डिफाइन करने के लिए to define the place of noun or pronoun, we need the help of preposition. There are many prepositions. For example, inside, out, outside, in fact, behind, beneath, then beside, above, below. So there are many prepositions, but कुछ preposition और हैं जिनके specific use है. For example, at, for. Now if I talk about below, above, at, for, ये आपका कई बार at, if I talk about at, this is a preposition, but ये कई बार specific टाइम को डिफाइन करने के लिए भी यूज में आता है. जब मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम को डिफाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कम एट 3, प्लीज कम एट 11, आई गो एट 9. तो जब मुझे स्पेसिफिक टाइम को डिफाइन करना होता है तब मैं एट को यूज में लाता हूँ. अबव, बिलो कहीं ना कहीं मेजरमेंट, यानी कि आपने सुना ही होगा कि बांध में पानी ऊपर है, खतरे के निशान से ऊपर है, खतरे के निशान के नीचे है, तो वहाँ पे मैं बिलो, द वाटर लेवल इज बिलो द डेंजर मार्क और वाटर लेवल इज अबव द डेंजर मार्क. ठीक है, तो और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं. अगर आपको और भी प्रीपोजिशंस चाहिए और उनके पर्टिकुलर यूजेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिएगा. मैं आपको सारे प्रीपोजिशंस बताऊंगा और उनके एक एक यूज़ भी बताऊंगा. यहाँ तक आपको शायद सारा बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड द यूज ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आवर कम्युनिकेशन. Now let us go to the next parts of speech, that is your conjunction. Now this is like a Fevikwik. Yes, this is like a Fevikwik, or you can say Fevicol. Why I am taking these two examples? Because somewhere it joins two words, two sentences, but apart from this it also have many other duties. What are those? Let us first take a look at what are the basic conjunctions. Basic conjunctions are your
are your and, but, and because, and or but, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, एंड बिकॉज, क्योंकि। तो कहीं ना कहीं आपको एक स्लाइटेस्ट आइडिया तो लग गया होगा कि इनके यूजेस क्या है। एंड इफ आई टॉक अबाउट एंड, इट इज सिंपली ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, two sentences or two nouns or two pronouns together. For example, very common examples: pen and pencil, table and chair, he and she, Ram and Shyam, इस तरह से। Okay, but if I come to these two, because and but आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट शो करता है। कैसे? जैसे कि आपका अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है, आई रीच स्टेशन ऑन टाइम, मैं स्टेशन टाइम पर पहुंच गया था। पर आई मिस्ड द ट्रेन। तो कहीं ना कहीं आपका एक रिजल्ट शो किया। फर्स्ट एक्शन में आप स्टेशन पहुंच तो गए टाइम पर, बट आपने ट्रेन मिस कर दी। तो ये कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट शो करता है। एक दो एग्जांपल्स और दे देता हूं जस्ट फॉर द क्लियरिटी। फॉर एग्जांपल, आई केम टू योर प्लेस पर there was lock on the door, so I returned back. अब देखना, ये बहुत सारा चीजें मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है? कि मैं वापस घर क्यों आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था और ये था, तो ये आया और आई रिटर्न बैक। तो ये एक रिजल्ट शो कर रहा है, एक जर्नी ऑफ रिजल्ट शो कर रहा है। और ये रिजल्ट कैसे शो कर रहा है? हाउ आई एम एबल टू शो दैट रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ बट। सो दिस इज द use of but, and this is the importance of but in our communication, especially in the verbal part where I have to talk about the result. The next conjunction is because. I am watching Saurav sir's video क्योंकि अगर आप वॉच कर रहे हो तो मैं इसको एग्जाम्पल में ले सकता हूं ना। ओके, आई होप यू ऑल आर वॉचिंग माई वीडियोज। क्योंकि आई एम फाइंडिंग इट प्रैक्टिकल। तो कहीं ना कहीं इसने रीजन शो किया। दिस इज एक्चुअली अबाउट रीजन बिहाइंड द एक्शन। बिहाइंड व्हाट? द एक्शन। तो कहीं ना कहीं इसने आपका रीजन बताया। क्या रीजन बताया? कि आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो या
सोच रहे हो देखने की, क्यों? बिकॉज समवेयर इट इज प्रैक्टिकल। तो इस तरह से हमारा बिकॉज हेल्पफुल होता है, सेंटेंसेस को और अच्छे से दिशा देता है। इट इज गिविंग डायरेक्शन टू दी सेंटेंसेस। So now let us move to the last parts of speech, that is your interjection. Now if I talk about interjection, this is very special and very sudden. We do not plan about this interjection, because if I talk about interjection, it is never planned. It is happening all of a sudden. For example, if you see your friend after a long time, wow, what a pleasant surprise. Or if your favorite team in IPL is losing, oops, my team is losing. And all of a sudden it starts winning, wow, hurrah, my team starts winning. So like this we are using interjection. In writing part it is very clear, because I am using this symbol which is called exclamation mark, but in speaking we use intonation. Intonation, which is about your sound. You sound surprises, means all of a sudden something if happens, आपका गले की आवाज़ एकदम से चेंज हो जाता है, वहाँ पे हमें पता चलता है दिस इज अबाउट इंटरजेक्शन। तो एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। नाउन और प्रोनाउन, इट इज अबाउट नाउन खास नाम, then your adjective, नाम के बारे में कुछ, then your verb, it is about your action, performed by noun or pronoun, then your adverb, यहाँ पे नाम के बारे में था, एडजेक्टिव, एक्शन के बारे में, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कैसा है, यहाँ पर भी अगर मैं बोलता हूँ कैसा है, I think so it will become more easy, more simple. Then comes your preposition, ये स्थान, place, किसका, noun और pronoun. Then comes your conjunction, इसके 3 पार्ट्स निकल कर आता है, जोड़ना, देन कारण बताना, रीजन, देन परिणाम। Result. Then the last one is interjection. अचानक से की गई प्रतिक्रिया। So this is all about your 8 parts of speech. अभी तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि why these are very important in our communication. कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार
निभाता है हमारे कम्युनिकेशन में। एंड इफ़ वी स्टार्ट वैल्यूइंग देम, इफ़ वी स्टार्ट गिविंग देम इम्पोर्टेंस, somewhere our communication will also become very nice. So अब एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि मेरे जो अभी तक के वीडियोस हैं काफ़ी प्रैक्टिकल, मेरी कोशिश भी यही रहती है कि काफ़ी प्रैक्टिकल वीडियोस मैं आप सबके सामने लाऊं, इसीलिए कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं एक ऑब्जर्वर भी हूं और कहीं ना कहीं मैं साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मर भी हूं। तो अगर आपको पीडी से भी रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हो कि पीडी से रिलेटेड भी आपको कुछ वीडियोस चाहिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे ये वीडियो चाहिए, या मैं यहाँ पे मैं फंस जाता हूँ या मैं फंस जाती हूँ, आई स्टार्ट फेसिंग सम चैलेंजेस वाइल आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो अपने कोई भी जो एरिया है जहाँ पे आपको मुश्किल होता है या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी अगर आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हो, समझ पा रहे हो आसानी से, मेरा जो लैंग्वेज है आपके लिए आसान है और वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा सो दैट यू स्टार्ट गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ माय other videos also. Till then, goodbye, have a nice day.